Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step, the Government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित राके ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया की सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. આપણા દીકરા દીકરીઓ જેના મા બાપ અલગ હશે પણ સરકાર મા બાપ તરીકે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ અને ભૂપેન્દ્રભાઈની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર એ પોતે મા બાપ બનીને એમની વ્યવસ્થાઓ યુક્રેનથી ઇન્ડિયામાં આવે, રશિયા સાથે ચર્ચા કરવી પડે તો રશિયાની સાથે પણ ચર્ચા કરીને આસપાસના જે કન્ટ્રીઓ છે યુક્રેનની એ કન્ટ્રીઓ સાથે પણ ચર્ચા કરીને ભારતવાસીઓ અને ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ અને ગુજરાતવાસીઓ પાછા આવે એમના માટેના સફળતાપૂર્વકના પ્રયાસો કર્યા। આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ કેન્દ્ર સરકારે સૌપ્રથમ તો આપણા વિદ્યાર્થીઓ અને ભારતીયોની સલામતી કેવી રીતે રહે એમની વ્યવસ્થાઓ આ સ્થિતિમાં ભારતે જે સંબંધો બાંધ્યા છે એ સંબંધોનો ફાયદો એ ભારતના લોકોને મળી રહ્યો છે, એની અનુભૂતિ સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત કરી રહ્યું છે। અને આપણી એમ્બેસી
ત્યાં પણ એમ્બેસી છે, આપણી પણ એમ્બેસી છે. અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે રશિયાના એક એમપી ગઈકાલે ટીવીમાં બોલતા હતા કે કોઈ ભારતીય હોય અને ભારતનો ધ્વજ બતાવશે તો એની વ્યવસ્થા અલગ કરીશું. આ ભારતના સંબંધો અને ભારતની તાકાત એ જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદથી બની છે. મને પૂરી શ્રદ્ધા છે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અને બધા જ લોકો એ હેમખેમ આપણે લાવી શકીશું અને ભવિષ્યમાં રહી ગયેલાને પણ કમ બાય કમ જે રીતની વ્યवस्था બને એ પ્રકારે લાવી શકીશું. जैनसी भेटारिया फ्रॉम राजकोट. हमें रोमेनिया से लाया गया है, रोमेनिया बॉर्डर से. हमारा सिटी जो है वो रोमेनिया बॉर्डर से बहुत नज़दीक तक है, तो हमें वहाँ तक बस में ले जाया गया. फिर रोमेनिया बॉर्डर में हमें अंदर एंटर किया गया और वहाँ से रोमेनिया के एयरपोर्ट, मेन जो कैपिटल पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे ले जाया गया था. और वहाँ से एयर इंडिया की 6 आवर्स की फ़्लाइट थी और हमें कोई दिक्कत नहीं आई है यहाँ आने में. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सपोर्टेड अस ऑल एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हमें बहुत अच्छे से मदद की है और वी आर वेरी थैंकफुल टू देम. हाँ, हम जाना चाहेंगे क्योंकि हमारी स्टडीज़ बाकी है और हम सेकेंड ईयर में हैं, तो 6th ईयर तक हमें कंप्लीट करनी है. मेरा नाम भव्या चग है, मैं जूनागढ़ से हूँ. मैं MBBS पढ़ रही हूँ BSMU में. हम चरनी बच्ची से, हमारी कॉलेज वहाँ पे है जो रोमानिया बॉर्डर के पास ही है, इसलिए हमें सबसे पहले निकाला गया है. इंडियन एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब ने हमारी बहुत हेल्प की है. फ्लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं आई. हम बस भी उसने अरेंज कर दी है. रोमानियन मिलिट्री ने भी बहुत हेल्प की है. बॉर्डर पर भी कोई दिक्कत नहीं आई और अभी तक हमें इन लोगों ने मतलब छोड़ा नहीं है कि आप लोग चले जाओ. हमको सेफली घर ड्रॉप कर रहे हैं ये लोग. बहुत सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे आके ये सबको देख के कि हमारे पेरेंट्स हम यहाँ पे सेफली पहुँच गए. पर एज ए सेफ्टी बोलते हैं तो हमें इवैक्यूएट कर दिया. पर अभी माहौल कुछ ठीक नहीं है रोमानिया बॉर्डर पे, तो भी इंडियन एम्बेसी ट्राई कर रही है, दिन रात कर रही है. हो जाएगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. गवर्नमेंट हमारे साथ ही है. बहुत अच्छे से मदद की, सब कुछ उन्हीं ने किया. हमारे साथ कांटेक्ट में रहते थे, हमें अलग अलग फॉर्म फिलअप करवाए कि आप कहाँ हो, क्या हो, और अच्छे से मतलब सब अरेंज कर दिया. बसेस, फ्लाइट, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ हमें दिया जाता था. हम अभी सेकेंड ईयर में है, हमें 6th ईयर तक कंप्लीट करना है MBBS की स्टडी. सब कुछ ठीक हो जाएगा, होप सो. हम जाना चाहेंगे. हमें मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से मतलब फ्लाइट और सब अरेंज कर दिया. My name is Anjali Vasani. I am from Amreli. I am a second year medical student in Bukovina State Medical University, Ukraine. So, बहुत दिनों से जो युद्ध का माहौल था उसमें हम रह रहे थे और मेरे अचानक से जब आफ्टर attacks in Kharkiv and Kyiv, our flights getting cancelled and इंडियन गवर्नमेंट्स ने बहुत हेल्प की हमें इंडिया वापस पहुंचाने के लिए. सो थैंक यू सो मच टू इंडिया गवर्नमेंट एंड एयर इंडिया की फ़्लाइट्स अरेंज की एंड रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करवाए हमने. थैंक यू सो मच. ऑब्वियसली ये हमारा ड्रीम था कि डॉक्टर बनने के लिए जा रहे, तो कैसा भी माहौल हो, अगर वो स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो हम ज़रूर चाहेंगे. और ऑनलाइन है अभी फ़िलहाल तो स्टडीज़, और आई होप कि कुछ ना हो. और जी, मोदी सरकार ने रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करवाने से लेके इंडिया लाने तक हेल्प की और गुजरात सरकार मुंबई से हमारे घर पहुंचा रही है. तो थैंक यू सो मच. खाने की पीने की सारी जो फैसिलिटीज़ उसने प्रोवाइड की है उन्होंने. थैंक यू सो मच, फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं राजकोट सिटी से हूँ और यूक्रेन में वहाँ से मैं चरनी से बिलोंग करती हूँ. वहाँ पे मैं MBBS कर रही हूँ और वहाँ का माहौल ऐसा है कि 23 को फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. तो गुजरात सरकार का मतलब सब लोग, इंडियन एम्बेसी का वो हमें आया था मैसेज कि वो लोग जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करेंगे हमें. तो उसके दूसरे ही दिन उन लोगों ने इवैक्यूएट की प्रोसेस चालू कर दी थी. तो उसी में हम फर्स्ट बैच है जो यहाँ पहुँच पाई है. हम गुजरात सरकार ने भी बहुत हेल्प की है हमें यहाँ तक सेफली पहुँचाने में. और मैं राजकोट से हूँ तो वहाँ तक हमें सेफली घर तक पहुँचाएंगे ऐसा इन लोगों ने बोला है. और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी हेल्प है. इंडियन एम्बेसी, थैंक यू वेरी मच. जो रोमानियन इंडियन एम्बेसी है उन लोगों की हेल्प, फिर यहाँ की इंडियन एम्बेसी की हेल्प. हम बॉम्बे पहुँचे थे, वहाँ की इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत हेल्प किया है. मतलब सब